Page number 12 of the spiral, friends. Page number 12 of the spiral. HRA, if we recap the HRA, वापी ने सुबह सुबह फोटो सेशन करवाया क्लासरूम में. If we recap the HRA, friends, house rent allowance that is given to the employee for meeting the house rent expenditure. What was the exemption in the HRA? थोड़ा सा टाइम हो गया है तो हल्का सा रिकैप करके आगे बढ़ रहे हैं. Your HRA exemption, that is a minimum of 1, 2 and 3. 1 क्या था? Actual HRA received. Second, rent paid minus 10% of the salary. And what was the salary for HRA? Same salary as gratuity, third category. That was your basic salary, DA return benefits, and commission percentage of turnover. And the third condition, it was 40% or 50% of the salary. 50% in the case if the house is situated in a metro place, otherwise the 40% of the salary. और इसके हमने सम्स भी सॉल्व किए थे क्लासरूम में. एक छोटा सा सम मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं. आई एम डिक्टेटिंग द सम बेस्ड ऑन द एचआरए जो हमने लास्ट किया था. प्लीज नोट डाउन. Please note down, all of you. Mr. X is entitled, note down the question. Mr. X is entitled the salary of rupees 10,000 per month and then after he got increment of rupees 2,000 with effect from 1st September 2010. He is also entitled for the DNS allowance. He is also entitled for the DNS allowance at the rate of 20%, and out of which 40% is 40, out of which 40% is part of the 40% is part of the retirement benefits. 40% is part of the retirement benefits. He was getting HRA. Rupees 6,000 per month.
he was getting HRA rupees 6,000 per month, and he was paying rent, at a rate of rupees 5,000 per month. He was paying rent at a rate of rupees 5,000 per month. Calculate the gross salary. Calculate the gross salary of Mr. X for the assessment year 2011-2012. एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, यू चेक योर स्पाइरल. आपकी स्पाइरल पे लास्ट पेज जो है वो पेज नंबर 199 होना चाहिए, वो आप देख लेना. लास्ट पेज शुड बी 199 और उस पेज पे 199 पेज पे ऊपर लिखा हुआ है आंसर 15 नंबर का आंसर है उस पेज पे, और वो 199 वो स्पाइरल होनी चाहिए. यदि आपके पास में और कोई स्पाइरल है तो यू चेक विद योर कोऑर्डिनेटर, यू शुड बी हैविंग दिस स्पाइरल विच आई टोल्ड यू. लास्ट पेज 199 और उस पेज पे सॉल्व किया हुआ जो क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है आंसर 15. सब लोग अपनी स्पाइरल चेक कर लें एंड ट्राई द सम. उसके बाद मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ. HRA जो हम कर चुके हैं वही सम मैंने डिक्टेट किया हुआ है. यू टेक द हेल्प ऑफ द स्पाइरल एंड द सम विच वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर और ट्राई करो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं. प्लीज स्टार्ट फ्रेंड्स. इंक्रीमेंट है तो आप जानते हो वी हैव टू कैलकुलेट द HRA इन पार्ट्स. जब भी कोई चेंज होता है सैलरी में, रेंट में, HRA में, तो हमको पार्ट्स में गिनने का होता है. यहां पे 1 सितंबर से सैलरी चेंज हुई है. सो द फर्स्ट पार्ट दैट वुड बी योर April 10 to the August 10 and September 10 to the March 11. First actual HRA 6,000 रुपये HRA 5 महीने का 30,000. Rent paid it is 5,000. So 25,000 is a rent paid minus 10% of the salary. Salary it is 10,000. 5 महीने की सैलरी 50,000 plus DA. The total DA friends it is 20%. Out of that 40% is part of the return benefit. तो 50,000 का 20% और उसका 40%. 4,000 रुपया हमको ऐड करना है. 25,000 minus 5,400 which comes to 19,600. and third कोई प्लेस नहीं दिया हुआ है. if no place is given by default friends what it is a 40% of the salary. $21600. Therefore, minimum is exempt, that is 19,600 and taxable $10,400. The second part, actual HRA, this is your 7 months. 6,000 into 7, 42,000. Rent paid, that is 35,000 minus 10% of the salary. 12,000 is in salary now. So 12,000 into 7, that is 84,000 plus DA. जितना रिटर्न बेनिफिट का पार्ट है उतना इंक्लूड करोगे आप. So 35,000 minus 9,072 and therefore
25928. Third is the 40% of 90720. Three 6288 exempt 25928 and your taxable 16072 and hence the total taxable HR है 26472. Himmatnagar, Surendranagar, they have given the correct answer of the HRA 26472 and then after find out the gross salary, all of you check the answer of HRA and find out the gross salary. Okay, Gandhiram. हाँ वापी आपका आंसर मिला मेरे को. Please check your gross salary statement. Your 187272. Now, come to page number 12 of the spiral. जहां से हमको अभी स्टार्ट करना है. So on page number 11, allowances दिया हुआ है. सबसे पहला allowance that was HRA that we have done. उसके बाद point number 13, allowances which are exempt to the extent of the actual amount received or the amount spent for the specified purpose for which these were received, whichever is less. कितना exempt होगा? Actual amount received or amount spent, whichever is less. In other words, what? सेविंग इज टैक्सेबल. सपोज आपको 10,000 रुपया मिला हुआ है और आपने 8,000 खर्चा कर दिया. एग्जाम कितना? जितना मिला 10,000, जितना खर्चा हुआ 8,000, दोनों में से जो कम है वो एग्जाम हो जाएगा. मतलब 8,000 आपका एग्जाम हो जाएगा, 2,000 रुपया टैक्सेबल. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यदि आप पैसा बचाते हो, कम खर्चा करते हो, देन द सेविंग इज टैक्सेबल. यदि पूरा खर्चा हो गया है जिसके लिए आपको मिला हुआ है, उसके लिए पूरा खर्चा हो गया, then what? Then nothing is taxable. There are here the 6 allowances that we are going to see one by one, where the same logic, same principle, same concept that saving is taxable. सबसे पहले allowance लिखा हुआ है, that is the traveling allowance. Traveling allowance क्या होता है कि आप कंपनी के काम से बॉम्बे गए. अलाउंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब फिक्स पैसा मिलना, that you know.
कंपनी के काम से बॉम्बे जाते हो, 10,400 का खर्चा हुआ, कंपनी ने आपको 10,400 दे दिया, इज इट अलाउंस? नो, इट इज नॉट एन अलाउंस, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, इट इज अ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जितना खर्चा हुआ है उतना ही रुपया मिलता है, तो उसको हम रीइंबर्समेंट बोलते हैं। एंड रीइंबर्समेंट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उसमें सेविंग होता ही नहीं है, जितना खर्चा हुआ है उतना ही रुपया मिलता है। बट अलाउंस का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या हुआ है? ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब आप बॉम्बे गए हो, कितना खर्चा हुआ उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी आपको फिक्स बॉम्बे आने जाने का सपोज 6,000 रुपया दे रही है, कंपनी ने फिक्स किया हुआ है। आप जैसे भी जाओ, चाहे आप सेकंड एसी से जाओ, चाहे आप गाड़ी लेके जाओ, वॉटेवर, 6,000 रुपया दी फिक्स किया हुआ है और आपका खर्चा 4,000 रुपए का हुआ है, तो लीगली दैट 2,000 इज टैक्सेबल। So that is the traveling allowance. If the company is giving the fixed amount for the traveling and you have spent less, कम खर्चा हुआ है, then the saving is taxable. Second is your daily allowance. Daily allowance क्या होता है? Daily allowance का मतलब होता है कि कंपनी के काम से, जैसे कि बॉम्बे गए, मैंने बताया आपको, आने जाने का जो पैसा फिक्स दे रही कंपनी, उसको तो ट्रैवलिंग अलाउंस बोलेंगे। बट वहां पे जो आप रुकते हो, 4 दिन आपने स्टे किया, 8 दिन आपने स्टे किया, और जो होटल का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, उसके लिए कंपनी आपको फिक्स पैसा दे रही है कि भाई एक दिन का आपको 2,000 रुपया मिलेगा, जिसमें होटल भी आप करो अपने हिसाब से, खाने पीने का भी आ गया, वॉटेवर। वो 2,000 रुपया एक दिन का मिल रहा है, आपने 8 दिन वहां पे रुके, आपको 16,000 रुपया कंपनी अलग से देगी। दैट इज वॉट फ्रेंड्स, दैट इज एन डेली अलाउंस। और डेली अलाउंस में क्या रूल है? यही प्रिंसिपल है, यही रूल है, दैट सेविंग इज टैक्सेबल। हाँ, सेविंग नहीं दिखाते हो वो अलग बात है, बट लीगली दैट सेविंग इज टैक्सेबल। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेली अलाउंस को उसको 16,000 रुपया मिला और 15,000 का खर्चा हो गया, देन व्हाट फ्रेंड्स, देन 1,000 इज टैक्सेबल। देन द थर्ड, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? कन्वेंस अलाउंस मतलब लोकल कन्वेंस। जैसे आप अहमदाबाद में जॉब कर रहे हो और अहमदाबाद में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो कंपनी के काम से, ऑफिस के काम से, और फिक्स किया हुआ है कि भाई जो कोई ये इनकम टैक्स ऑफिस आएगा तो उसको 100 रुपया मिलेगा, कोई बैंक जाएगा तो उसको 50 रुपया मिलेगा। आप अपने व्हीकल से जा रहे हो और कंपनी आपको फिक्स पैसा दे रही है लोकल कन्वेंस का, उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। एंड दैट कन्वेंस अलाउंस, अगेन द सेम रूल, सेम लॉजिक, द सेविंग इज टैक्सेबल। तीनों तीन पढ़ लो, गो थ्रू ऑल 3। ट्रैवलिंग, डेली एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग मैंने बताया, आउट ऑफ स्टेशन आने जाने का पैसा मिलता है, वो ट्रैवलिंग होता है। वहां पे आप रुकते हो और आपको जो पैसा मिलता है एक दिन का, जितने दिन रुके उसके हिसाब से पैसा मिलता है, उसको डेली अलाउंस बोलते हैं। और कन्वेंस अलाउंस माने लोकल, जहाँ पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आप एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हो और जो पैसा मिलता है, दैट इज द कन्वेंस अलाउंस। हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या होता है मैं बताता हूं आपको। हेल्पर अलाउंस का मतलब होता है, कई कंपनियां, ऐसे बहुत कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जर्मन कंपनियां ऐसा करती हैं कि जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनको फर्दर क्लार्क्स, फर्दर प्यून, फर्दर असिस्टेंट नहीं देते हैं और फिक्स पैसा दे देते हैं। कि मैनेजर को बोला कि मेरे को 2 पर्सन चाहिए, मैनेजर बोलता है, तो उसको 2 एम्प्लॉय नहीं देंगे, उसको बोलेंगे 20,000 रुपये ले लो तुम फिक्स, और आप एम्प्लॉय रखो और कंपनी का काम करवाओ। हेल्पर जो चाहिए, हेल्पर माने असिस्टेंट, कंपनी असिस्टेंट नहीं रखती है, कंपनी मैनेजर को फिक्स पैसा दे देती है और मैनेजर असिस्टेंट रखेगा और कंपनी का काम करवाएगा, ताकि कंपनी को एम्प्लॉयज कम रखने पड़े, उनको ग्रेजुटी, पीएफ वगैरह सब कंपनी को कम देना पड़े, इसलिए मैनेजर वगैरह को वो फिक्स पैसा दिया जाता है। मैनेजर विल हायर द पर्सन्स, बहुत कम देखने को मिलता है। दैट इज द हेल्पर अलाउंस। मैनेजर को आपने 20,000 रुपये दिए असिस्टेंट के लिए, उसने आदमी रखे, वो 16,000 रुपये पे कर रहा है, 4,000 रुपया वो सेविंग कर रहा है। व्हाट फ्रेंड्स, दैट सेविंग 4,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट इज रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है
तो ऑनगोइंग रिसर्च चलता ही रहता है फॉर न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग्स वगैरह। अब वहां पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको यदि फिक्स पैसा दिया जाता है कि भाई आपको रिसर्च, आप जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा बजट महीने का 25,000 रुपया है या तुम्हारा बजट 40,000 रुपये का है, और उसमें यदि पैसा बचता है that the saving is taxable, and the last is an uniform allowance. कंपनी ने यूनिफॉर्म नहीं दिया, कंपनी ने यूनिफॉर्म के लिए फिक्स पैसा दे दिया कि भाई कपड़े के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में यूनिफॉर्म होता है, उसके लिए 4,000 रुपया फिक्स दे दिया या 5,000 रुपया फिक्स दे दिया, और उसमें से कोई सेविंग होता है, दैट सेविंग इज टैक्सेबल। ये जो 6 अलाउंसेस थे, इन ऑल दिस 6 अलाउंसेस फ्रेंड्स, व्हाट द सेविंग इज टैक्सेबल। Please go through all the 6 allowances. Any doubt, any query, please ask. Any doubt, any query, please ask. Here. आपको ये याद रखने हैं 6 allowances के नाम यहाँ पे। Then after, point number 14, allowances which are exempt to the extent of amount received और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। अब जो अलाउंसेस करने जा रहे हैं इसमें कितना खर्चा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस फ्रेंड्स, इट इज नॉट रेलेवेंट। हाउ मच इज एग्जम्प्ट, जितना रुपया मिला आपको या जो लिमिट स्पेसिफाइड की गई है, विच एवर इज लेस। So, the first is the children education allowance. Children education allowance, that is exempt up to the actual amount received per child or ₹100 per month per child, whichever is less, and the exemption is available for maximum 2 children. कितना exempt होगा? जितना रुपया आपको मिल रहा है या 100 रुपये महीने का पर मंथ पर चाइल्ड, दोनों में से कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन कितने चिल्ड्रन के लिए मिलेगा? फॉर द 2 चिल्ड्रन। तो कंपनी यदि एम्प्लॉयज को चिल्ड्रन की स्टडीज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, चाइल्ड की स्टडीज के लिए कंपनी यदि उनको पैसा दे रही है, सो दैट अमाउंट इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। देयर इज एन एग्जम्पशन दैट वी हैव सीन, बट एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। मतलब एक चाइल्ड का ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन साल का 1,200 रुपया हो सकता है, एंड मैक्सिमम एग्जम्पशन कैन बी 2,400 फॉर द 2 चाइल्ड। उससे ज्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट, यू हैव टू चेक कि भाई कितना रुपया मिल रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, एक्चुअल कितना मिल रहा है, और उसको आप कंपेयर करो 100 रुपए से, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। याद रखो, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट हियर। आई एम डिक्टेटिंग 1-2 स्मॉल एग्जांपल, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। पोरबंदर हेल्पर अलाउंस, जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनको असिस्टेंट रखने के लिए, हेल्पर रखने के लिए कंपनी पैसा देती है। वो हेल्पर जो रखेंगे, असिस्टेंट रखेंगे, वो कंपनी का ही काम करेंगे, पर्सनल काम नहीं करने वाले। और उनको जो पैसा दिया हुआ है उसमें से सेविंग होता है, दैट सेविंग इज टैक्सेबल। गांधीधाम, हाउ एम्प्लॉय कैन रिसर्च, क्यों साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ड्रग्स कंपनी में, वो लोग हायर कर लेते हैं, दे आर द एम्प्लॉय, और उनको बोला जाता है कि आप रिसर्च करो। गांधीधाम, Porbandar and Gandhinagar, is that clear? Please confirm to me. Note down the example. Mr. X has received rupees. Mr. X has received rupees 5,400. Mr. X has received rupees 5,400 as children education allowance, during the year
during the year for 3 children, calculate the taxable amount. Please see here कैसे करने का. एक्चुअल आपको मिल रहा है 5,400 3 चिल्ड्रन का. पर चिल्ड्रन आपको कितना मिल रहा है? पर चिल्ड्रन यू आर गेटिंग 1800 और पर मंथ कितना मिल रहा है आपको? पर मंथ यू आर गेटिंग 150. सो 150 इंटू 12 इंटू 3 ये आपको एक्चुअल मिल रहा है माइनस एग्जम्पशन. Actual you are getting 150. So what is an exemption? Actual or 100 rupees per month, whichever is less. So 150 or 100, whichever is less. What is less, friends? 100 is less. So 100 multiplied by 12. Even though you are getting for 3 children, the exemption is maximum for 2 children. The concept of the family planning they have introduced here. 2400. 3000. That is your taxable. Copy like this. Note down the next example. Mr. X has received rupees. Mr. X has received rupees 2,700. Mr. X has received rupees 2,700 as children education allowance. As children education allowance for 3 children. For 3 children, calculate the taxable amount. आंसर बताओ मेरे को आप लोग. Let's see on the board. ₹2700 मिला हुआ है. पर मंथ पर चाइल्ड कितना रुपया हो रहा है? 75 rupees. 2700 divided by 12 divided by 3. 75. Now what is an exemption? Actual amount received or 100, whichever is less. So directly 100 रुपया exemption नहीं मिलेगा. यदि आपको 100 रुपये से कम मिला हुआ है, then what friends? Then that lesser amount is exempt. So 75 or 100, whichever is less. 75 is less. Your exemption is 75 rupees. 1800. Hence the 900 is taxable. Directly 2400 minus नहीं कर देने का. Solapur, check your mistake. Next example. Mr. X has received rupees 6,000. Mr. X has received rupees 6,000 as children education allowance during the year
for 8 children, calculate the taxable amount. बिहार यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन लिया हुआ है जहां पे 11-12 चिल्ड्रन होते हैं कम से कम. Yes. All of you are going correct answer. Yes, answer is 4,500 rupees. 4,500 is taxable. Come to our spiral now. So next is your hostel expenditure allowance. यदि चिल्ड्रन हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हो सकता है कंपनी आपको अलग से पैसा दें जो चिल्ड्रन हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई के लिए, हॉस्टल के खर्चे के लिए, और उस अलाउंस को जैसा कि नाम है उसको बोला जाता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस. सी इफ यू कंपेयर द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड द हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एक ही फर्क है उसमें कि वहां पे 100 रुपए तक का एग्जम्पशन था चिल्ड्रन एजुकेशन में, यहां पे आपका 300 रुपए तक का एग्जम्पशन है. How much, friends? It is exempt up to 300 rupees per month per child for a maximum of 2 children. Go to the hostel expenditure allowance, all of you. Note down the example. Mr. X has received rupees 3,000. Mr. X has received rupees 3,000 as children education allowance, and rupees 12,000 as hostel expenditure allowance, for 3 children during the year. Calculate the taxable amount. दोनों अलग अलग कैलकुलेट करो, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर. कैलकुलेट सेपरेटली. That is 1,04800. 1,000 that is your the children education and 4,800 that is your hostel expenditure allowance. Most of you got the answer. The next is and third is your tribal area allowance. ट्राइबल एरिया अलाउंस मतलब जो बैकवर्ड एरिया जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको कंपनी हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा दे जिसका नाम है ट्राइबल एरिया अलाउंस. अब जंगल में काम कर रहे हो, ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है. आज आप सिटी में काम करो, रिमोट एरिया में काम करो, फर्क पड़ता है. रिमोट एरिया में काम करोगे तो आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगे बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो मे नॉट बी अवेलेबल ओवर देयर. और फैमिली के साथ रह रहे हो तो उनकी एजुकेशन, उनका मेडिकल वगैरह भी उतना पुअर रहेगा सिटी के मुकाबले. एंड देयरफॉर द कंपनी gives the extra amount to those employees who are working in the backward area, tribal area. In the income tax, that allowance, that extra amount which the employee gets, it's not fully taxable. Very small exemption is given over here. That is up to 200 rupees per month that would be exempt. If you are getting more than 200, the excess amount is taxable. In other words, if you are getting rupees 800 per month, 800 रुपये आपको मिल रहा है, so
So no need to tell that 600 rupees per month would be taxable. Then is an transport allowance. Transport allowance क्या होता है? Why that allowance is given? Friends, transport allowance दिया जाता है that employee जो घर और ऑफिस के जो आने जाने का जो खर्चा होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है. It is given for meeting the expenditure between office and residence. That transport allowance, friends, that is exempt up to rupees 800 per month. 800 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है. जैसा कि मैंने बताया, ये जो अलाउंसेज हमने स्टार्ट किए हैं चिल्ड्रन एजुकेशन से, इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं है. आपका खर्चा कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. याद रखो, आपको 800 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, या चिल्ड्रन एजुकेशन में आपको 100 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा. Even though your expenditure may be 20 rupees, let's say, but still we know the exemption we have to work out, we have to check actual amount received or limit whichever is less. आपको कहीं ना कहीं लिखना हो तो लिख लो. In this allowances कितना खर्चा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी यही तरीके से ऑब्वियसली कि कितना खर्चा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है. आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा that you will get up to rupees 800 per month. यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको 1200 रुपये मिल रहा है तो 400 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 रुपया उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है खर्चा 200 रुपये का हो रहा है, पास में ही घर है, पास में ही ऑफिस है, 200 रुपये का खर्चा हो रहा है महीने का और मिल रहा है उसको 1200. देन ऑल्सो व्हाट फ्रेंड्स, देन ऑल्सो 400 रुपीज टैक्सेबल. सेविंग टैक्सेबल यहां पे नहीं है. 1000 रुपया उसका सेविंग हो रहा है फिर भी टैक्सेबल कितना होगा? 400 रुपया. खर्चा नहीं भी हो रहा है फिर भी 800 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा. फर्दर इट इज गिवन, यू कैन सी दैट इफ द एम्प्लॉय इज ए ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, if the employee is a blind or orthopedically handicapped, then what friends, then there is an higher exemption. Exemption कितना है? डबल, 1600 रुपया महीने का. यदि एम्प्लॉय ब्लाइंड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, देन व्हाट, हाउ मच एग्जम्पशन यू हैव टू अलाउ? यू हैव टू अलाउ द एग्जम्पशन ऑफ रुपीज 1600 पर मंथ. फ्रेंड्स याद रखो, इट विल बी गिवन इन द सम इफ इज ए ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप. आप एज्यूम नहीं करना, डोंट पुट ए नोट that we have assumed employee is a blind and don't allow the exemption of rupees 1600. Please read that. Read the transport allowance. So the exemption है 800 रुपये तक का. 800 तक मिल रहा है तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. 800 से ज्यादा मिल रहा है तो जितना ज्यादा मिल रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा. Then after it is your अंडरग्राउंड अलाउंस. अंडरग्राउंड अलाउंस जैसा उसका नाम है, अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब होता है वो एम्प्लॉयज जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोल माइंस हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द अननेचुरल क्लाइमेट. हो सकता है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं आ रही है, अंदर में काम हो रहा है, आर्टिफिशियल लाइट से काम कर रहे हैं. So to those employees who are working in the underground, the employer, the company may give the extra amount and name as the underground allowance, and that you can see here it is not fully taxable. The exemption is what friends? The exemption is available up to 800 rupees per month. Go through. Next is again friends the transport employees लिखा हुआ, that is a transport allowance given to the transport employees. मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप काम कर रहे हो, रेलवेज में काम कर रहे हो, एयरलाइंस में काम कर रहे हो, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ता है, आप अपने होम टाउन डेली नहीं आते हो, और उस केस में आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो एग्जम्पशन वो 800 रुपये वाला नहीं आएगा. अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 800 रुपये एग्जम्पशन, यस दैट इज ट्रू, बट यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन द हायर एग्जम्पशन इज अवेलेबल. Then what is an exemption? Then the exemption is in 70% of the actual allowance.
70% of the actual allowance or rupees 10,000 per month, whichever is less, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, जैसे कि रेलवेज एयरलाइंस वगैरह में काम करते हो आप, और आपको पैसा मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देन द हायर एग्जाम्पशन यू हैव टू अलाउ। प्लीज गो थ्रू दैट। You can underline 70% of such allowance or rupees 10,000 per month, whichever is less. Note down one small example. Mr. X is working in a transport system. Mr. X is working in a transport system. He is entitled for the transport allowance. He is entitled for the transport allowance at the rate of rupees 8,000 per month. Calculate the taxable amount. Calculate the taxable amount. Please see here, what is an exemption? Your exemption is in 70% of the actual allowance, 8,000 or rupees 10,000, whichever is less. 70% is 5,600 or 10,000, whichever is less. So 5,600 per month, that is exempt. Therefore, taxable is 2,400 per month multiplied by 12. Total taxable 28,800 for the year. Please check your answer from the board. Then after, next is your the entertainment allowance. Entertainment allowance वैसे पॉपुलर नहीं है इतना, फिलहाल मिलता भी नहीं है, बट थियोरेटिकली इट इज देयर. If the employer is giving the entertainment allowance, then what? Then there is no exemption, friends. There is a separate treatment. The deduction is available. What is the difference? Exemption का मतलब होता है कि जितना रुपया आपको मिल रहा है उसमें से हम एग्जाम माइनस करके जो टैक्सेबल आ रहा है, ये टैक्सेबल अमाउंट हम दिखाते हैं ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट में. सपोज ये क्वेश्चन में हम ग्रॉस सैलरी में कितना दिखाएंगे? 28,800 जो टैक्सेबल है, एग्जाम माइनस करके हम दिखाते हैं टैक्सेबल में. एंटरटेनमेंट अलाउंस में ऐसा नहीं करने का. एंटरटेनमेंट अलाउंस में एग्जाम्पशन नहीं है, उसमें डिडक्शन है. मतलब क्या होगा कि जितना रुपया आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, पहले वो सारा अमाउंट ग्रॉस सैलरी में दिखा देने का. Whatever amount you are getting, the total amount you have to show in your gross salary statement, and then after finding the gross salary, मतलब सबका जो टोटल करेंगे उसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, और उसमें से आपको ये डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट. क्या करना है? हमको नेट नहीं दिखाना है, पहले जितना मिल रहा है वो सारा दिखाने का ग्रॉस सैलरी में, और उसके बाद यदि आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो तो ग्रॉस सैलरी में से फिर आपको डिडक्शन सेपरेटली करना है ऑन अकाउंट ऑफ द एंटरटेनमेंट अलाउंस. किसको डिडक्शन मिलता है? नाउ द आंसर इज द डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. प्राइवेट एम्प्लॉयज को ये डिडक्शन नहीं मिलता है. The deduction is available only to the government employees. And what is an amount of deduction? It is a minimum of 1, 2 and 3. 1 is an actual entertainment allowance received. Second is your 20% of the salary. Salary का मतलब क्या है? Only basic salary. DA भी नहीं लेने का. Second is an 20% of the basic salary, and third is rupees 5,000. This 5,000 is not per month, it is per annum. 5,000 रुपये पूरे साल का. मतलब कहने का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी व्हाट फ्रेंड्स? 5,000.
पूरे साल का। और वो डिडक्शन किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए तो कोई डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन कैसे देने का मैंने क्या बताया? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी डिडक्शन मिल रहा है, फिर भी हम डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे। पहले जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है वो सारा हम दिखाएंगे और उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करेंगे टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द मैक्सिमम डिडक्शन आई टोल्ड यू दैट कैन बी ₹5,000. Go to the entertainment allowance. पढ़ लो सारा. Read the theory part, all of you. That 5,000 is per annum. Then after going to the theory, you will read question number 1 and you will tell me the answer of question number 1. Let's see. Your deduction is minimum of following. One is an actual entertainment allowance received. कितना रुपया मिल रहा है? 2,000 रुपया. सो 24,000 रुपया. Second is an 20% of the basic salary, that is 8,500 to 12, 20400, and third we know it is 5,000. This 5,000 is per annum. तो ये जो दोनों फिगर लिखोगे ऑब्वियसली वो पर एनम आपको लिखने पड़ेंगे, देन ओनली इट वुड बी कंपेरेबल एंड देयरफॉर जो मिनिमम है वो डिडक्शन है. Your deduction is 5,000. This is answer 5,000. पहले क्या करना है? ग्रॉस सैलरी में पूरा 24,000 आप ऐड करोगे और बाद में 5,000 रुपया माइनस होगा. Read question number 2 and tell me the answer. Yes, Mehsana has given a correct answer. Amritsar also. Yes, the correct answer is what, friends? 0. No deduction. Deduction नहीं मिलेगा because he is working in a private company. ये जो डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, बाकी एम्प्लॉयज को डिडक्शन नहीं मिलता है. आंसर इज 0. 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3. मैं आपको बाद में हेल्प करूंगा, पहले मैं हेल्प नहीं करूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 and 4, these two sums are the revision. एक्चुअली जो हमने अभी तक जो हमने किया हुआ है स्टार्टिंग से लेके ग्रेजुएटी से लेके अभी तक, वो सब चीज का रिवीजन हो जाएगा हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेजुएटी, पेंशन, लीव एनकेसमेंट, HRA, ऑल द थिंग्स आर देयर. एक एक करके सारी चीजें फाइंड करो, उसके बाद ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट बनाओ. ग्रेजुएटी का आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आता है? She was employed with 15,000. He was employed with 15,000. Then after there is an increment of 2,000. इसका मतलब पुरानी सैलरी 15,000, इंक्रीमेंट के बाद आपको कितनी लेनी है? You have to take 17,000 after increment. Gratuity, Porbandar has given the correct answer. Tell me the answer of gratuity, friends.
Average salary is coming 17710. Taxable gratuity 43740. All of you check the answer of the gratuity, then after start pension. Yes, pension is 22,500 वापी. ग्रेजुटी का आंसर देखें, उसके बाद पेंशन करो. पोरबंदर, दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ पेंशन. ग्रेजुटी का आंसर मैं रब कर रहा हूं, आपने देख लिया होगा. पेंशन फर्स्ट अनकम्यूटेड from December to the Feb, 6,000 into 3. मार्च में 25% कॉम्यूट हो गया तो आपको 75% मिलेगा. अमृतसर एवरेज सैलरी फाइंड करो आप. पहले सैलरी 15,000 थी, बाद में 17,000, तो 17,000 इंटू 2 आएगा, 15,000 इंटू 8. उसके बाद डी ऐड करो, 60% का 25, 15,000 इंटू 8, 17,000 इंटू 2, उसके बाद डी ऐड करने का 60% का 25%. बताओ मेरे को अमृतसर आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरेज सैलरी टेल मी. %25. Total taxable pension 22,500. क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद 15,000. एम्प्लॉयड मतलब उसने 15,000 से सर्विस ज्वाइन करी, उसके बाद इंक्रीमेंट 17,000 सैलरी वुड बी आफ्टर इंक्रीमेंट. ग्रेजुएटी पेंशन का आंसर आपके सामने है बोर्ड पे. लीव एंकेजमेंट कर दिया होगा चालू आपने. लीव एंकेजमेंट का आंसर बताएंगे. पोरबंदर लीव एंकेजमेंट फर्स्ट एक्चुअल
that is your 50,000. Second is 10 into average salary. Third, that is the company policies 40 days. So we will reconcile the data as per the company, जैसे कि हम पहले करते थे. टोटल एंटाइटलमेंट कंपनी के हिसाब से 12 साल काम किया उसने, 40, 480. अपना बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट एक्यूमुलेटेड लीव, दैट मीन्स इतना उसका बैलेंस है 240 एंड देयरफॉर 240 इज अवेल्ड as per the IT. Your total entitlement, that is 12 into 30, 360 minus availed 240, 120 is the balance. That is what friends, 4 months, and therefore 4 multiplied by average salary, 70840. Next is 3 lakhs or exempt 50,000, taxable is 0. You can see the answer of leave encashment from the board. You will give me the answer of the HRA now. HRA, how many parts? First part, April to June, the full HRA taxable. Second part is July to the September. And the next part is your October to the November. First part, the total HRA taxable. Tell me the answer of HRA. सूरज, ग्रॉस सैलरी का आंसर गलत है, HRA सही है. अमृतसर, that is the wrong answer of HRA. Porbandar, your answer is also wrong. I told you of the HRA. No, Vapi, it is not 3000. I told you to check it. Actual year, that is HRA, 15,000. Second is your rent paid. Rent paid is 4,000. So 12,000 minus 10% of the salary. Salary 15,000, that is 45,000 plus the DA, 60% का 25%. $6,750.
So it is a 12,000 minus 5175, which comes to 6825. Third is your 40% of 51750, 20700. Therefore, exempt 6825, your taxable 8175. Your actual, that is 10,000, rent paid is 8,000, minus 10% of the 2 month salary, that is 34,000 basic plus 5100, that is 8,000 minus 3910, 4090, and third is your 40% of the salary, 15640, and therefore exempt 4090 and the taxable 5910. Hence the total taxable HRA, the correct answer is 29085. Total taxable HRA 29085. Now वापी that is the correct answer. HRA का आंसर बोर्ड पे देख सकते हैं. The total taxable HRA I told you 29085. HRA गिनने के बाद आप लोग ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट बनाओ. All of you. एरियर सैलरी जो 10,000 रुपए लिखा हुआ है, that will be fully taxable. We have to assume that एरियर सैलरी it is not taxed earlier. उसके बाद ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट बनाओ और मेरे को आंसर बताओ ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट का. एचआरए का आंसर आपके सामने बोर्ड पे 29085. Now I am showing you the answer of the gross salary. 305725. Answer of gross salary 305725. You can see on the board now. सब आंसर मिला लो आप. ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे. बेसिक सैलरी 15,000 इंटू 6, अक्टूबर से चेंज होगी 17,000 इंटू 2, 1,24,000 रुपये आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी. डीए उसका सीधा 60% आ जाएगा जितना बेसिक सैलरी है. It is your 305725. You can see the answer. Nasik, you check it again.
and then tell me. Start solving question number 4 friends now. Don't waste time. कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में. सो एवरेज सैलरी वुड बी 8200. 8,000 रुपये बेसिक और फिर 25% का 10% 200 रुपये डी एड होगा. Tell me the answer of gratuity in question number 4. 50400. Check the answer of gratuity. 50,400. Actual gratuity received 75,000. Second 1 by 2 multiplied by 8,200 multiplied by 6. 8,200 एवरेज सैलरी, क्योंकि कोई चेंज नहीं है लास्ट 10 मंथ्स में, तो जो हमारी आखिरी सैलरी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, यू विल गेट 8,000 प्लस डीए आपको ऐड करना है 25% का 10%. सो एवरेज सैलरी यू आर गेटिंग 8,200. टैक्सेबल ग्रेजुएटी 50400. प्लीज चेक द आंसर. जिसका भी आंसर नहीं आता है प्लीज टेल मी. पेंशन, पेंशन में कॉम्यूटेड पेंशन नहीं है, सिर्फ अनकॉम्यूटेड पेंशन है 3,000 रुपया. कॉम्यूट नहीं हुआ है. अनकॉम्यूटेड पूरा टैक्सेबल होता है. 2 महीना पेंशन मिलेगा उसको. 1/2 को रिटायर हुआ है, 1 फरवरी को रिटायर हुआ है, तो 3,000 इंटू 2 योर टैक्सेबल पेंशन इज व्हाट फ्रेंड्स? 6,000 रुपीज. टैक्सेबल पेंशन 6,000. 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2. ग्रेजुएटी का आंसर मैंने बताया 50400. लीव एनकेसमेंट करोगे ग्रेजुएटी पेंशन के बाद. एंड टेल मी द आंसर ऑफ लीव एनकेसमेंट. जिसका भी आंसर नहीं आता हो ग्रेजुएटी पेंशन का आंसर, प्लीज टेल मी. लीव एनकेसमेंट फॉर एक्चुअल. वापी टेल मी द आंसर ऑफ द एचआरए. Actual 24,000. 10 multiplied by average salary. Third, the company policy is 45 days. So as per company, your total entitlement 6 साल काम किया हुआ है. So 6 into 45, which comes to 270. और जो बैलेंस है 90 डेज का एक्यूमुलेटेड लीव, इतनी लीव उसकी जमा हुई है 90 दिन. And therefore availed is 180. Yes, Vapi, the answer of HR is correct. Total entitlement, that is 6 into 30, 180 minus availed 180. So balance is 0 as per the income tax. And therefore 0 multiplied by average salary, that is 0, and the fourth is 3 lakhs. Minimum is exempt, so 0 exempt, and taxable 24,000. Check your answer of leave encashment. Taxable, total leave encashment taxable 24,000. HRA Vapi Surat, yes, it is the correct answer. लीव एनकेसमेंट के बाद एचआरए करोगे. एचआरए का आंसर बताओ.
HR, I will tell you the answer. Answer is 19,100. Your answer of HR है 19,100, 19,100. HRA में आपके टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे. पहला पार्ट अप्रैल से लेके अगस्त तक और दूसरा सितंबर से लेके जनवरी तक. फर्स्ट पार्ट में 5 महीने का पूरा HRA टैक्सेबल 15,000 रुपया, 15,000. And in the second part from your September to January, it is taxable 4,100, and hence the total taxable HRA 19,100. HRA का आंसर चेक करने के बाद ग्रॉस सैलरी स्टेटमेंट बनाओ. Correct answer, gross salary 216,500. You can see on the board now. See the answer of the gross salary 216,500. is 19,100. ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल इज कमिंग 9,000. क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ही इज वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यू कैन सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने. फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ही इज वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसा कि हमने आज ही देखा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो काम कर रहा है तो उसको एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगा. व्हाट इज एन एग्जम्पशन इफ इज वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? 70% ऑफ द एक्चुअल अलाउंस और ₹10,000, विच एवर इज लेस. So, in the case of the transport allowance, your exemption is 70% of the 3,000 or ₹10,000 per month, whichever is less, that is 2,100 per month is exempt. Therefore, taxable is 900 per month multiplied by 10 months. And therefore taxable 9,000. Total taxable HRA 216,500. So total taxable, your gross salary 216,500. All of you now check the final answer 216,500. Friends, we are completing here. Goodbye all of you.